گیتا، تم میرے گھر آئیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ حقیقت میں مجھے انٹرنیٹ کے بارے میں کئی اہم باتوں کو سمجھنے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ضرور چچا، میں یہاں آپ کی مدد کرنے اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ جانتی ہو گیتا، جب مجھے ٹرین سے کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو مجھے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں فصلوں کی موجودہ قیمت معلوم کرنے کے لیے اکثر شہر جاتا رہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے شہر جانے کے لیے بہت دور ریلوے اسٹیشن تک کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ٹکٹ لینے کے لیے لمبی قطار میں لگنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر فصلوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے سرکاری دفتر میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ارے چچا، بس اتنی سی مشکل ہے آپ کی؟ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ حقیقت میں ٹرین ٹکٹ بک اور ساتھ ہی ساتھ فصلوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ براہ کرم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس طرح کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ اپنے گھر سے ہی فصلوں کی قیمت کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور ریلوے کا ٹکٹ کیسے بک کرا سکتے ہیں۔ گیتا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں گھر بیٹھ کر فصلوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتا ہوں۔ بالکل چچا، یہی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انٹرنیٹ بھارت کے کاشتکاروں کو کافی مدد کر سکتا ہے۔ سچ میں؟ تو چلو مجھے سمجھاؤ کہ انٹرنیٹ کے استعمال سے میں کیسے استفادہ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے چچا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی زراعت کی وزارت کاشتکاروں تک پہنچنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی 70% آبادی دیہی علاقوں میں بستی ہے اور زراعت اور اس سے جڑے دوسرے کاموں پر منحصر ہے۔ زراعتی حلقے کی اہمیت کی وجہ سے محکمہ زراعت و کارپوریشن، زراعت کی وزارت بھارت سرکار مسلسل زرعی شماریات یکجا کرتی ہے اور ان کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے، اور پورٹل www.agmarknet.nic.in ان کے لیے آسان بناتی ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے کاشتکار ملک بھر کے بازاروں میں تھوک اشیاء کی قیمت کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک عام انٹرنیٹ کنیکشن کی مدد سے وہ آسانی سے مختلف پیداوار کی روزمرہ کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اطلاعات ہندی، انگریزی، پنجابی، تیلگو، تمل اور بھارت کی دوسری زبانوں میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تھوک قیمت کی معلومات کے علاوہ آپ قرض، زراعتی حلقے سے متعلق پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کاشتکار اپنی فصل نزدیکی بازار میں اچھی قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ اچھی خبر ہے۔ براہ کرم مجھے بتاؤ کہ میں اس سائٹ سے صوبے کے بازار میں چاول کی تھوک قیمت کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، بس یہ اقدامات کریں۔ پہلے اس پیج پر www.agmarknet.nic.in ٹائپ کریں۔ اگر آپ اتر پردیش میں چاول کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس پیج پر مارکیٹ بلیٹن سیکشن میں ڈیٹ وائز پرائسز فار اسپیسیفائڈ کوموڈیٹی لنک پر کلک کریں۔ جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو ایک نیا پیج کھلے گا۔ اس پیج میں سال اور ماہ کو چنیں جس کی آپ قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو صوبے کے نام کا انتخاب کرنے کا آپشن ملے گا۔ صوبے کے نام کا انتخاب کریں۔ جس صوبے کی معلومات چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں۔ یہاں ہم اتر پردیش کا انتخاب کریں گے۔ صوبے کا نام منتخب کرنے کے بعد ایک اور ونڈو ظاہر ہوگی جس میں آپ کو اشیاء کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اشیاء کی فہرست میں آپ چاول پر کلک کریں۔ ایک بار چاول کو منتخب کرنے کے بعد سبمٹ بٹن پر کلک کریں۔ اب آپ منتخب ماہ کی مختلف تاریخوں کے لیے اتر پردیش کے مختلف بازار میں چاول کی قیمتوں کی ایک رپورٹ دیکھیں گے۔ کیا میں بھی اس سائٹ سے
बाजारों की सभी अशिया के बारे में मालूमात हासिल कर सकता हूँ? जरूर चचा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आप बाजार की सभी अशिया की कीमत जानना चाहते हैं, तो आप बुलेटिन सेक्शन के मार्केट वाइज कमोडिटी वाइज डेली रिपोर्ट पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक पेज नजर आएगा। कैलेंडर से तारीख को चुनें। तारीख का इंतखाब करने पर सूबों की फहरिस्त नजर आएगी। इस फहरिस्त में से सूबे का नाम मुंतखब। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इंतखाब किया गया है और फिर सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर बाजारों की फहरिस्त नजर आएगी। जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हो उस बॉक्स को चेक करें और फिर आप सबमिट पर क्लिक करें। अगर आप एक से ज्यादा सूबों का नाम मुंतखब करना चाहते हैं तो CTRL यानी कंट्रोल बटन को दबाएं। तब वेबसाइट आपके जरिए मुंतखब बाजारों की एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। आजकल कई वेबसाइट्स मुहैया हैं जिनके जरिए आप हालिया वक्त के साथ साथ मुस्तकबिल के मौसम के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। भारत में कुछ अहम वेबसाइट्स हैं www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com। भारत में भारत सरकार की जमीनी साइंस की विजारत के महकमा मौसमियात है, जो कि मौसम से मुतालिक मुशाहिदात और मौसम की पेशन गोई के लिए जिम्मेदार है। सभी शुमारियात इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर मुहैया हैं। मैं इस साइट से मालूमात कैसे हासिल कर सकता हूँ? आसानी से, बस इन इक़दामात पर अमल करो। पहले एड्रेस बार में वेबसाइट का नाम लिखें। www.imd.gov.in एक स्क्रीन जाहिर होगा। अगर आप हिंदी जबान में देखना चाहते हैं तो पेज पर दाईं तरफ नजर आ रहे हिंदी ऑप्शन को चुनें, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर पेज के ऊपर और बाईं तरफ मुख्तलिफ मालूमात दी गई हैं जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। मौसम के बारे में जानने के लिए इंडिया वेदर लिंक पर क्लिक करें। आप वेबसाइट www.indiaweather.gov.in पर पहुंच जाएंगे। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस पर टैब दें और फिर अपनी अव्वलियत के शहर पर क्लिक करें। आप मुताल्लिका वेबसाइट पर दोबारा पहुंच जाएंगे। मिसाल के लिए हम अहमदाबाद सूबे का इंतखाब करेंगे। वेबसाइट के पेज पर बाईं तरफ मुख्तलिफ खिदमात जैसे मॉनसून, मकामी मौसम की पेशनगोई, बंदरगाह और माही गिरों को तंबीह, हफ्तेवार मौसम की रिपोर्ट होती है। मजीद मालूमात के लिए मुताल्लिका लिंक पर क्लिक करें। सूबाई मौसम की मालूमात के लिए स्टेट फोरकास्ट लिंक पर क्लिक करें और हफ्तेवार मौसम की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए वीकली वेदर रिपोर्ट पर क्लिक करें। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट से आप समंदर और मछली पकड़ने के मुमकिना इलाकों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं? सच में? कैसे? जमीनी साइंस की विजारत के एक खुद मुख्तार इदारा भारत का ओकियानूस इत्तलाती खिदमात के कौमी इदारे की वेबसाइट www.incois.gov.in देखें। मालूमात हासिल करने के इक़दामात हैं। पहले एड्रेस बार में www.incois.gov.in में टाइप करें तो ये स्क्रीन जाहिर होगी। मछली पकड़ने के मुमकिना इलाकों की मालूमात के लिए एडवाइजरी सर्विसेज के तहत पोटेंशियल फिशिंग जोन पर जाएं। साहिली इलाकों की पेशनगोई की तलाश के लिए एडवाइजरी सर्विसेज के तहत ओशियन स्टेट फोरकास्ट पर जाएं। किसी खास साहिली इलाके के पास समंदर की मालूमात के लिए सी स्टेट फोरकास्ट्स फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स पर क्लिक करो। हाय रोहन, कैसे हो और कैसे आना हुआ? दीदी, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। दीदी,
क्या मैं इंटरनेट से तालीम से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकता हूँ? बिल्कुल रोहन, बस इस साइट पर जाएं और ये इक़दामात करें। पहले वेबसाइट www.shiksha.com देखें। पेज में सबसे ऊपर मुख्तलिफ टैब दिए गए हैं। माकूल मालूमात हासिल करने के लिए उनके जरिए जाएं। होम टैब में सर्च बार दिया गया है। इदारे का नाम या कोर्स का नाम जिसके बारे में आप मालूमात चाहते हैं एंटर करें। साथ ही मुल्क या बैरून मुल्क की मालूमात तलाश करने के लिए स्टडी इन इंडिया और स्टडी अब्रॉड जैसी मुतबादिल साइट्स दस्तयाब हैं। MBA टैब में MBA कोर्सों और इदारों की मालूमात दी गई है। आप मखसूस मजजूह कोर्स और इम्तिहानात कराने वाले इदारों की फहरिस्त देख सकते हैं। आफ्टर 12th टैब में 12वीं जमात पास करने के बाद किए जा सकने वाले मुख्तलिफ कोर्सों की मालूमात मुहैया है। करियर सेंट्रल टैब आपके जरिए मुंतखब किए जाने वाले मुख्तलिफ शोबों और कोर्सों की मालूमात देता है। टॉप इंस्टीट्यूट्स टैब का इस्तेमाल कर आप मुख्तलिफ शोबों जैसे MBA, BE, BTech या LLB के आला इदारों को तलाश सकते हैं। होम पेज में ऑप्शन जैसे करियर ऑप्शंस, टेस्ट प्रिपरेशन, आर्टिकल्स और टूल्स के अंदर मुख्तलिफ लिंक दिए गए हैं। रोहन, अब आप मुझे तालीम वेबसाइट का इस्तेमाल कर बेंगलोर में आर्किटेक्चर कोर्सों को तलाश करके दिखाइए। बिल्कुल, मैं करके दिखाता हूँ दीदी। स्टेप 1, www.shiksha.com खोलिए। स्टेप 2, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करें और नीचे की तरफ मेन्यू में साइंस एंड इंजीनियरिंग का इंतखाब कर आर्किटेक्चर पर क्लिक करें। स्टेप 3, शहरों की फहरिस्त से शहर बेंगलोर को क्लिक करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। आपको इत्तला मिल जाएगी। आजकल बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मुहैया हैं जो मुलाजमत और कैरियर से मुतालिक दूसरी इत्तलात मुहैया कराती हैं। मिसाल के तौर पे www.employmentnews.gov.in, www.naukri.com, www.timesjob.com, www.ruralnaukri.com ऐसी वेबसाइट है सिर्फ देही बाजार की ही इत्तलात फराहम करती है। अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करें www.employmentnews.com। होम पेज पर इत्तलात और लिंकों वाले बहुत सारे शोबे जाहिर होंगे। आप जो चाहते हों उस लिंक के बारे में मजीद जानने के लिए उस पर क्लिक करें। मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के जरिए लिए गए इम्तिहानात के नताइज और दाखिले की फहरिस्त देखने के लिए एडमिशन एंड रिजल्ट पर जाएं। करियर से मुतालिक मुख्तलिफ इत्तलात हासिल करने के लिए करियर लिंक्स पर जाएं, जहां तालीमी, एरोनॉटिक, बैंकिंग, सिविल सर्विस, डिफेंस, इंजीनियरिंग से मुतालिक अहम लिंक दिए गए हैं। रोजगार खबर का सारिफ बनने के लिए होम पेज के ऊपर दाहिने कोने पर दिए गए लिंक पर जाएं और लिस्ट में दिए गए जरूरी इक़दामात करें। आप ई वर्जन टैब पर जाकर यूजर नाम और पासवर्ड का इस्तेमाल कर रोजगार का ई एडिशन हासिल कर सकते हैं। अब मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए जदीद मुलाजमत तलाश करके दिखाएं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। स्टेप 1, इस साइट को खोलिए www.employmentnews.gov.in। स्टेप 2, होम पेज के नीचे आइए, आपको सरकारी मुलाजमत की जदीद मालूमात मिलेगी। इसी तरह आप वेबसाइट में मौजूद दूसरी खुसूसियात का इस्तेमाल कर सकते हैं और मनपसंद मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कि आप naukri.com का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
पहले एड्रेस बार में टाइप करें www.naukri.com। आप मतलूबा मुलाजमत को ओहदा, हुनर, मकाम, मुलाजमत का दर्जा और मुमकिना तनख्वाह की बुनियाद पर तलाश सकते हैं। आप मुलाजमत तलाशने के लिए होम पेज में नीचे दी गए मुख्तलिफ तरीक़ेकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नीचे दी गई हैं। अगर तकर्रुर करदाओं को तलाश रहे हैं तो बटन पर जाएं। मजीद वाज़े तलाश के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करें। अगर आप अपना बायोडाटा पोस्ट करना चाहते हैं तो होम पेज में पोस्ट रिज्यूम टैब पर जाएं और मतलूबा इत्तलात भरें और अपना रिज्यूम अपलोड करें। अगर आप लॉग इन या इंदराज कराना चाहते हैं तो जॉब सीकर लॉग इन टैब पर जाएं और लॉग इन करें। वेबसाइट की दूसरी खुसूसियात जैसे बायोडेटा लिखना, प्रोफाइल में इजाफा, रिक्रूटर रीच या करियर एडवाइस के लिए फास्ट फॉरवर्ड टैब पर जाएं। तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात के लिए लर्निंग टैब पर जाएं। ये हिस्सा भारत के साथ साथ बैरून मुल्क के मुख्तलिफ कोर्सों और कॉलेजों की मालूमात रखता है। www.ruralnaukri.com के जरिए मुलाजमत तलाश करने के लिए www.ruralnaukri.com पर जाएं। मुलाजमत की तकर्रुरी की इत्तला ईमेल से हासिल करने के लिए टैब का इस्तेमाल करते हुए खुद को इंदराज कराएं। अगर आप खुद को मुंदरिज करा चुके हैं तो अपने यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल कर वेबसाइट में बाईं जानिब दिए हुए मेंबर लॉगिन में लॉगिन करें। जारी होने वाली जदीद मुलाजमतों की तफसील जानने के लिए वैकेंसीज टैब पर जाएं, जहां मुलाजमत का ओहदा, इदारा और मकाम दर्ज होगा। रोजगार या इंटरव्यू, मशवरा और रिज्यूम की इशाअत से मुतालिक मुख्तलिफ खिदमात तक पहुंचने के लिए वेबसाइट के दाहिनी जानिब एम्प्लॉयज सर्विसेज सेक्शन पर जाएं। अब वेबसाइट www.naukri.com को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर की मुलाजमत मुंबई में तलाश करें। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप इंटरनेट के जरिए काश्त या तकर्रुरी से मुतालिक मालूमात तलाश करना सीख गए हैं। अच्छा गीता, क्या मैं इंटरनेट के जरिए अपना बिजली और टेलीफोन का बिल अदा कर सकता हूँ? बिल्कुल, इस तरह के बिल आप इंटरनेट के जरिए अदा कर सकते हैं। मुफीद खिदमात जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वो खिदमात हैं जिनका अदा करना बहुत ही खर्चीला होता है। आजकल दुनिया भर में बहुत सारी एजेंसियां बगैर कागज के बिलिंग और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी की सहूलत फराहम कराती हैं। इसने जिंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है, चूंकि कोई चाहे दफ्तर में हो या घर पर बिलों की अदायगी ऑनलाइन कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अदायगी करने के कुछ फायदे मुंदरजजील हैं। सफर और लंबी लाइनों के वक्त की बचत होती है। बिल गुम हो जाने का खतरा नहीं होता। सही तय तारीख तक अदायगी की जा सकती है। पूरे 24 घंटे अदायगी की जा सकती है। अदायगी करने से पहले बिल की रकम जरूर जांच लें। बिजली बिल की अदायगी ऑनलाइन करना। ज्यादातर बिजली देने वाली कंपनियों के पास बिलों की अदायगी ऑनलाइन हासिल करने की सहूलत है। मिसाल के लिए, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और BSES राजधानी आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है, तो आप इसकी साइट पर जाकर ऑनलाइन बिल की अदायगी कर सकते हैं। इसी तरह मुताल्लिका बिजली सप्लाई कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बिजली के बिल की अदायगी कर सकते हैं। भारत की कुछ बड़ी बिजली सप्लाई कंपनियां झेल हैं। चलो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम BSES दिल्ली में ऑनलाइन बिजली के बिल की अदायगी कैसे कर सकते हैं। पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं, www.bsesdelhi.com। अब
पेमेंट ऑप्शन पर जाएं और ऑनलाइन अदायगी करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इंतखाब करें। हिदायत को बारीकी से पढ़ें और पे नाउ पर क्लिक करें। अब दी गई विंडो पर अपना CA नंबर भरें। आपका CA नंबर आपके बिजली के बिल के दाहिनी जानिब ऊपरी किनारे पर होता है। गो पर क्लिक करें। अब अदायगी वाला पेज जाहिर होगा। अदायगी के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इंतखाब करें। जब आप इंतखाब कर लें तो अदायगी अमल शुरू करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन लेते हैं तो आपको इसकी मुकम्मल तफसील भरनी होगी और बाकी अमल भी मुकम्मल करना होगा। नेट बैंकिंग की हालत में बैंक का इंतखाब करें जिससे आप अदायगी करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग की साइट पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपनी ID और पासवर्ड डालना होगा। अदायगी मुकम्मल हो जाने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर भेजा जाएगा। आपके जरिए की गई अदायगी अगले 5 दिनों में BSES के खाते में पहुंच जाएगी। दीदी, क्या हम मोबाइल फोन को भी ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं? हाँ, जरूर। ऐसा करने के लिए अपने प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए बस ज़ेली इक़दामात करने हैं। पहले वेबसाइट पर जाएं www.rechargeitnow.com। अब मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और दिए गए ऑप्शन में से सर्विस प्रोवाइडर का इंतखाब करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें और कंटिन्यू बटन दबाएं। अब 2 मुतबादिल में से अपने प्लान की किस्म का इंतखाब करें और रिचार्ज रकम को भरें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर से मुतालिक मालूमात नजर आएगी। इसकी तस्दीक करें और 3 मुतबादिल में से किसी एक मुतबादिल का इंतखाब करें। अगर आप इंदराज शुदा सारिफ हैं और इंदराज नहीं चाहते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट को दबाएं। अगर आप इंदराज शुदा सारिफ हैं तो साइन इन बटन दबाएं। अगर आप इंदराज शुदा नहीं हैं लेकिन अपना इंदराज कराना चाहते हैं तो रजिस्टर बटन दबाएं। अगर आप कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबाते हैं तो स्क्रीन जाहिर होगी। अब अपनी मालूमात दर्ज करें और सबमिट दबाएं। अब अदायगी मुतबादिल में से किसी एक का इंतखाब करें। किसी एक मुतबादिल का इंतखाब के बाद बैंकों की फहरिस्त वाला एक ड्रॉप डाउन बॉक्स जाहिर होगा। अपनी बैंक का इंतखाब करें और कंटिन्यू बटन दबाएं। अब अदायगी का खुलासा जाहिर होगा। तस्दीक करने के बाद प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने जरिए मुंतखब किए गए बैंक के पेमेंट गेटवे पर दोबारा जाना होगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जरूरी रकम की अदायगी करें। रोहन, अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का इस्तेमाल करके खुद अपना मोबाइल रिचार्ज करें। बिल्कुल दीदी। स्टेप 1, रिचार्ज इट नाउ पर क्लिक करें। स्टेप 2, सर्विस प्रोवाइडर का इंतखाब कर तफसील एंटर करें। स्टेप 3, प्लान का इंतखाब करें, रिचार्ज रकम दाखिल करें और कंटिन्यू बटन दबाएं। स्टेप 4, कंटिन्यू एज गेस्ट को मुंतखब करें। स्टेप 5, अपनी मोबाइल तफसील डालें और अदायगी ऑप्शन चुनें। स्टेप 6, अपनी बैंक का इंतखाब करें और अदायगी करें। दीदी, हम पोस्टपेड मोबाइल का बिल कैसे भर सकते हैं? हम पेटीएम वेबसाइट का इस्तेमाल कर पोस्टपेड मोबाइल का बिल भर सकते हैं। बस ये इक़दामात करें। पहले पेटीएम वेबसाइट पर जाएं, बिल पेमेंट्स पर जाएं। इसके बाद अपने पोस्टपेड मोबाइल का बिल भरने के लिए मोबाइल पर टैप करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरें, अपना ऑपरेटर चुनें और बिल की रकम दर्ज करें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें।
अब आपकी अदायगी का खुलासा जाहिर होगा। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें। अब पेटीएम में साइन इन करें। अगर आप नए इस्तेमाल करता हैं तो अपना अकाउंट बनाएं और फिर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पेटीएम पासवर्ड का इस्तेमाल कर साइन इन करें। अब स्क्रीन पर बाईं जानिब दिए गए मुतबादिल में से एक का इस्तेमाल करते हुए अदायगी करें। जब आप अदायगी मुकम्मल कर लेंगे तो आप कामयाबी से अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज कर लेंगे। गीता, क्या केबल टीवी के बिल की भी अदायगी कर सकते हैं? हाँ चचा, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप रिचार्ज इट नाउ वेबसाइट का इस्तेमाल कर डीटीएच कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं। यहाँ ऑनलाइन रिचार्ज सेक्शन के तहत 3 मुतबादिल नजर आएंगे। अपना डीटीएच रिचार्ज करने के लिए डीटीएच पर क्लिक करें, फिर अपने सर्विस प्रोवाइडर का नाम दर्ज करें। मान लें कि हमने सर्विस प्रोवाइडर की शक्ल में टाटा स्काई का इंतखाब किया है। अब अपना सारिफ आईडी नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू क्लिक करें। अब टाटा स्काई प्लान की फहरिस्त दिखाई देगी। खास पैक को एक्टिव करने के लिए रिचार्ज रकम दर्ज करें और फिर कंटिन्यू क्लिक करें। अब डीटीएच से मुतालिक मालूमात जाहिर होगी। इसकी तस्दीक करें और 3 मुतबादिल में से एक मुतबादिल का इंतखाब करें। अगर आप इंदराज शुदा सारिफ हैं और इंदराज नहीं चाहते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक करें। अगर आप इंदराज शुदा सारिफ हैं तो साइन इन बटन दबाएं। अगर आप इंदराज शुदा सारिफ नहीं हैं लेकिन अपना इंदराज चाहते हैं तो रजिस्टर बटन दबाएं। अगर आप कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबाते हैं तो एक स्क्रीन जाहिर होगा। अब अपनी तफसील दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। अब अदायगी के मुतबादिल में से एक का इंतखाब करें। किसी एक मुतबादिल का इंतखाब करने के बाद बैंकों की फहरिस्त का ड्रॉप डाउन बॉक्स जाहिर होगा। माकूल बैंक का इंतखाब करें और कंटिन्यू का बटन दबाएं। अब अदायगी की तफसील जाहिर होगी। तस्दीक करने के बाद प्रोसीड बटन दबाएं। अब आप अपने जरिए मुंतखब बैंक के पेमेंट गेटवे पर दोबारा भेज दिए जाएंगे। अपना यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जरूरी रकम की अदायगी करें। मुझे यकीन है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों की अदायगी और मोबाइल फोन और केबल टीवी नेटवर्क रिचार्ज करना आसान होगा। बिल्कुल दीदी, ये बहुत मुफीद है। हाँ गीता, यकीनन ये मालूमात हमारा काफी वक्त बचाएगी। बिल्कुल। तो चलो अब ये सब दोहराने के लिए एक कारकर्दगी में हिस्सा लेते हैं। गीता, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि ऑनलाइन ट्रेन व बस टिकट का आरक्षण कैसे करें? बिल्कुल चाचा, अब आपको ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन टिकटों का आरक्षण कराया जा सकता है। पहले वेब ब्राउजर खोलें और एड्रेस बार में टाइप www.irctc.co.in टाइप करें। दिए स्थान पर अपना यूजर नाम व पासवर्ड लिखें और लॉगिन करें। नोट: यदि वर्तमान उपयोगकर्ता नहीं है तो आप लॉगिन में जाएं और अपना यूजर नाम व पासवर्ड बनाएं। एक बार जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो यह सीन दिखेगी। अपना टिकट बुक कराने के लिए प्लान माई ट्रेवल सेक्शन में फ्रॉम ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन का नाम और लिस्ट में आपको गंतव्य स्टेशन का नाम लिखना होगा। उदाहरण के लिए यदि आप बेंगलोर से चेन्नई की यात्रा करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम लिस्ट में बेंगलोर व टू लिस्ट में चेन्नई टाइप करेंगे। उस वर्ग में आप स्टेशनों के कोड भी टाइप कर सकते हैं। अब डेट वर्ग में कैलेंडर से यात्रा की तिथि का चयन करें। अब टिकट टाइप पर जाएं और 2 में से एक विकल्प को चुनें। पहला विकल्प आई टिकट का, दूसरा विकल्प ई टिकट का है।
ई टिकट को ही आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट की तरह प्रिंट प्राप्त कर यात्रा कर सकते हैं। आई टिकट, भौतिक टिकट जो आपको ऑनलाइन बुकिंग के कुछ दिनों बाद प्राप्त होता है। अब कोटा क्षेत्र में विकल्पों में से एक विकल्प चुनें। यहाँ पर 3 विकल्प हैं, सामान्य, तत्काल व महिला। सामान्य में कोई भी यात्रा कर सकता है। तत्काल टिकट ट्रेन के प्रस्थान के एक दिन पूर्व बुक किया जा सकता है और लेडीज कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अब फाइंड ट्रेन्स बटन पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने पर आपकी आवश्यकताओं के आधार पर ट्रेनों की सूची प्रकट होगी। आप ट्रेन की जिस विशिष्ट श्रेणी में यात्रा करना चाहते हो उस पर क्लिक करें। यह आपको ट्रेन का विवरण और आगामी 6 दिनों तक टिकटों की उपलब्धता दिखाएगा। बुक विकल्प पर क्लिक करने पर यह पुनः आपको उस पेज पर निर्देशित कर देगा जहां आपको यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण भरना होगा। एक ई टिकट पर अधिकतम 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। बॉक्स में विवरण भरें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप आरक्षण का विवरण देख सकते हैं। प्रदर्शित विवरण को जांचें कि वह आपकी जरूरत के अनुसार है या नहीं। यह कोटे उपलब्धता भी दर्शाता है और आपके द्वारा अदा की जाने वाली रकम व सेवा शुल्क दर्शाता है। अब भुगतान करने के लिए मेक पेमेंट विकल्प पर क्लिक करें। अब वेबसाइट में दिखाए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प से भुगतान करें। भुगतान के विशिष्ट ढंग व बैंक का चयन कर लेने पर यह स्वचालित रूप से उस बैंक के भुगतान पृष्ठ पर चला जाएगा। अब भुगतान सफल हो जाने पर यह स्वचालित रूप से IRCTC की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। टिकट का या तो हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्रिंट लें और उसे यात्रा के दौरान किसी वैध पहचान पत्र के साथ रखें। Uncle, you can now try to book a sleeper class railway ticket from Delhi to Patna by using the IRCTC website. Yes, I am sure I can do it myself now. Step 1. Go to the IRCTC website and log in to your account. Step 2. To fill in your journey details in the From field, enter New Delhi and in the To field, enter Patna and select date of journey. Step 3. Click on Select button and check availability of the desired trains from the displayed list. Step 4. Click on Book Now and fill passenger details. Step 5. Enter mobile number and CAPTCHA code. Step 6. Select Next and the payment option will be displayed. Step 7. Select your preferred payment option. Make the payment. दीदी, क्या मैं मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट से रेलवे टिकट बुक करा सकता हूँ? हाँ रोहन, तुम मोबाइल फोन या टैबलेट पर भी रेलवे टिकट बुक करा सकते हो। IRCTC ऐप बगैर किसी फीस के डाउनलोड किया जा सकता है और ये एंड्रॉइड के साथ साथ विंडोज फोन के लिए भी दस्तयाब है। एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर टिकट बुक कराने के लिए ज़ीली इक़दामात करें। पहले प्ले स्टोर से IRCTC ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें और यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। कामयाबी से लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन जाहिर होगा। टिकट बुक करने के लिए बुक टिकट या एनक्वायरी पर क्लिक करें। अब प्लान माई ट्रैवल जाहिर होगा, जहां आपको अपनी मालूमात दर्ज करनी होगी, जैसे सफर की शुरुआत का मकाम, मंजिल, सफर की तारीख, दर्जा, कोटा और टिकट की किस्म। अब आपकी जरूरत के मुताबिक ट्रेन की फहरिस्त जाहिर होगी। किसी एक का इंतखाब करें। अब पैसेंजर फॉरम जाहिर होगा। मुसाफिर से मुतालिक मालूमात करने के लिए ऐड पैसेंजर पर क्लिक करें। मुसाफिर की मालूमात दर्ज करने के बाद ऐड पर क्लिक करें और तब पैसेंजर सक्सेसफुली एडिड के साथ विंडो जाहिर होगी। यहाँ टिकट की तफसील और टिकट का किराया जानने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अब सफर की तफसील और टिकट का किराया नजर आएगा। तफसील चेक करें, फिर दस्तयाब मुतबादिल में से किसी एक से अदायगी करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करें। अदायगी के तरीके और बैंक का इंतखाब कर लेने पर ये खुद ब खुद उस बैंक की अदायगी सफ़े पर चला जाएगा। अब अदायगी का तरीका तय हो जाने पर ये खुद ब खुद उस बैंक की अदायगी वाले पेज पर आपको ले जाएगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। क्या तुम ऑनलाइन बस का टिकट भी बुक करा सकती हो गीता? हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके जरिए आप बस का टिकट भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। दीदी, बराए करम बताइए कि हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पहले हम कुछ मशहूर ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानते हैं जो ये सहूलत दस्तयाब कराते हैं। कुछ ऑनलाइन पोर्टल जिनके जरिए आप अपना बस टिकट बुक करा सकते हैं वो हैं redbus.in, travelyaari.com, bookbusnow.com, abhibus.in, seatselect.in, simplybus, igoeasy.com। ये वो साइट्स हैं जिनके जरिए आप अपना बस टिकट बुक करा सकते हैं। सबसे मशहूर पोर्टल है redbus.in, जिसके पास 65% से अधिक का मार्केट शेयर है। अब उन इक़दामात को देखते हैं जिनके जरिए रेड बस की साइट का इस्तेमाल करके टिकट बुक करा सकते हैं। पहले www.redbus.in लॉगिन करें, फिर फ्रॉम, टू और डेट ऑफ जर्नी का इंतखाब कर सर्च बसेस विकल्प पर क्लिक करें। अब तलाश के नतीजे को सफा बुकिंग के लिए दस्तयाब सीटों को दिखाएगा। सफर, बस की कैटेगरी, सहूलियात, आने और जाने का वक्त और मकाम के मुताबिक नताइज का इंतखाब करें। सीट देखें, उस सीट पर क्लिक करें जिसे आप बुक करना चाहते हैं और चढ़ने और उतरने का मकाम का इंतखाब करें और फिर कंटिन्यू बटन दबाएं। अब इनफरादी तफसीलात भरें। अगर आपके पास ऑफर कोड या कैश कूपन है तो उसका इस्तेमाल करें। अब वेबसाइट पर जाहिर ऑनलाइन अदायगी के तरीकों में से किसी एक का इंतखाब कर अदायगी करें। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी करें। नेट बैंकिंग के जरिए अदायगी करें। रेड बस वेबसाइट के जरिए दिल्ली से हरिद्वार का टिकट बुक कराने की कोशिश करो। हाँ, मैं कर सकता हूँ। दीदी, क्या मैं रेड बस ऐप के जरिए बस का टिकट मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर बुक करा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। तुम्हें इस पर रेड ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए ज़ेली इक़दामात हैं। पहले प्ले स्टोर पर जाएं और रेड बस ऐप सर्च करें और इसे अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें। एक बार जब इंस्टॉल का अमल मुकम्मल हो जाए, ऐप को चालू करने के लिए खोलें और बुकिंग शुरू करें। अब चढ़ने और उतरने के मकाम को फ्रॉम और टू फील्ड में दाखिल करें। जब आप चढ़ने उतरने का मकाम दर्ज कर लें तो कैलेंडर से तारीख का इंतखाब करें और फिर सर्च बसेस पर क्लिक करें। अब अपनी इच्छानुसार प्रदर्शित किसी एक विकल्प का चयन करें। अब सीट चुनें और अपने बोर्डिंग की मालूमात दर्ज करें, फिर कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करें। अब अपनी जाती इनफरादी मालूमात जैसे नाम, आईडी, फोन नंबर, उम्र, जिन्स और फिर कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करें। अब दस्तयाब मुतबादिल में से एक तरीके से अदायगी करें। तो आप इस तरह ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। शुक्रिया दीदी, ये मालूमात हमारे लिए बहुत मददगार होगी। हाँ, बिल्कुल। चलो
अब इस कारकर्दगी को जांचें।